Squat is a form of interaction. एक मिनट. So today is interaction between ships, where two ships are approaching each other head-on in a canal, and we are two ships. They are approaching each other in an overtaking situation. So ये वाला करेंगे आज हम, which is called hydrodynamic interaction. ठीक है, एक मिनट, just let me open this. So I will be showing you an animation which has been prepared by ARI, and I'll share that with you now. Okay guys, दिख रहा है आपको? Can you see it? Yes sir. Screen दिख रहा है ना अभी? हाँ जी सर, दिख रहा है. Okay. So this is hydrodynamic interaction और background cases principle जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, pivot point का क्या effect होता है interaction में वो देखेंगे. But here is our interaction. So everyone please see the screen, because I will be explaining it to you on the screen itself. पहले 2-3 टाइम देखेंगे हम. पहले just see what is happening when two ships are approaching each other head on in a canal. Okay, so let's look at it again. Okay, so you've seen what has happened. अब एक बार फिर मैं बताता हूँ. Then we look at the science behind this. So two ships approaching head-on in a canal. Both the ships move to the starboard side to make safe passage between them. दोनों के बाव डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाहर को. दोनों शिप्स अबीम आ गई हैं, नज़दीक आ गई हैं, और जब छोड़ रहे हैं एक दूसरे को तो स्टर्न्स आर कोलाइडिंग. Okay, so one last time before I start explaining. Both the ships have moved to the starboard side. दोनों को बैंक इफेक्ट भी हो सकता है. अब बाव आउट हो रहा है, अबीम आ गए हैं, अब स्टर्न कोलाइड हो रहा है. Okay, so I have already explained to you कि जहाज के चारों ओर there are pressure systems. Okay, positive pressures and negative pressures. जहाँ पे भी buildup of water होता है वहाँ पे positive pressures होते हैं. So forward of the pivot point positive pressure होता है because it is building water there. आगे पानी को push करते हुए जा रहा है तो वहाँ पे bow wave बनती है, तो वहाँ पे positive pressure हो जाते हैं. पीछे पानी की स्पीड बढ़ जाती है, kinetic energy increases, तो वहाँ पे नेगेटिव प्रेशर्स होते हैं. अलग अलग जोन्स होती है शिप में जहाँ प्रेशर सिस्टम अलग अलग होते हैं. ठीक है. सो अब जब ये प्रेशर सिस्टम बदल जाएंगे फॉर वॉट एवर रीजन्स, देन इम्बैलेंस हो जाएगा प्रेशर सिस्टम्स का, विच विल रिजल्ट इन नेट प्रेशर्स, और इसको हम इंटरैक्शन बोलते हैं.
मैंने आपको जब हम स्क्वाट कर रहे थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप हाईवे पर कार चला रहे हो, राइट, स्पीड में जा रहे हो, आपके बगल से एक ट्रक निकलता है स्पीड में, तो योर कार वॉबल्स, क्योंकि प्रेशर सिस्टम बदल गया। वही ट्रक अगर 1 किलोमीटर दूर से जा रहा है तो कुछ नहीं होता है, पर वो नज़दीक आ जाता है तो बिटवीन योर कार एंड द ट्रक डिस्टेंस कम हो गया, प्रेशर सिस्टम्स बदल गए और इंटरैक्शन हुआ। So now let's look at this image one by one. So first of all, जब तक ये दोनों जहाज बीच में थे, the pressure systems were equal on both the sides. But now they have moved to the side. So both the vessels may experience bank effect, right? Not necessarily, but depending how close they are, उनकी speed क्या है, उनकी underkeel clearance क्या है, they may experience bank effect. ठीक है? And here in this example, we are assuming that both the ships are same in size, sister ships hai. Both the ships are loaded. Both the ships are on even keel. And both the ships have the same, what you call, under keel clearance. ये हम assume कर रहे हैं. अगर ये parameters बदल गए तो interaction भी बदल जाएगा. So now both the ships have moved to the starboard side to make a safe passage distance between them. Both the ships may experience bank effect. Okay. अब ये हो गया, bow आ गया है. When the bows of both the ships come closer, so दोनों के bows में positive pressure है और दोनों ship की bow waves हैं. And when the two bow waves meet, they deflect each other. तो दोनों का bow deflect हो रहा है towards the starboard side. Okay, due to build up of water there, वहाँ पे दोनों की bow wave आ रही है और दोनों की bow wave क्या कर रही है? Deflect कर रही है. Now, on the starboard side, on the starboard bow of both the ships, you can see negative pressure. यहाँ पे negative होता नहीं है, but in comparison to the port bow, starboard side में थोड़ा सा कम है, इसलिए negative दिखा रखा है. So, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? When two ships are, ये question जो आता है, when two ships approaching head-on in a canal. So you have to start with that when two ships are approaching head-on in a canal, right, both the ships move to the starboard side to make safe passage between them. Both the ships may experience bank effect. अब next पढ़ाओगे, in figure A, when the bows of two ships come together, there is a buildup of pressure there, positive pressure, and the bow wave of each vessel deflects the bow outward. तो गोल्डन वाले की जो बाव वेव है वो रेड वाले के बाव को और रेड वाला जो उसकी गोल्डन को वो डिफ्लेक्ट करेगी आउटवर्ड्स. दैट्स फिगर ए. अब फिगर बी में क्या हो रहा है? बोथ द शिप्स ऑफ कम अबीम. जब अबीम आ जाते हैं तो दोनों के बीच में कंस्ट्रिक्शन हो गया, गैप कम हो गया. गैप कम हो गया है तो जो बैकफ्लो है वाटर का, वेलोसिटी उसकी बढ़ जाती है, मतलब नेगेटिव प्रेशर्स बढ़ जाते हैं. And negative pressures create suction effect. So both the ships are bodily drawn towards each other. आप नीचे वाली इमेज में एरो देख रहे हैं, रेड इधर को और गोल्डन रेड की तरफ जा रहा है, रेड गोल्डन की तरफ आ रहा है. So both the ships are bodily drawn towards each other due to
increased velocity of the backflow, constriction हो गया है। यही जहाज अगर 1 किलोमीटर या 1 नॉटिकल माइल दूर से जा रहा होता तो नहीं होता ये, जैसे मैंने ट्रक का एग्जांपल दिया। बट सिंस दे आर क्लोज, रिस्ट्रिक्शन हो गया है बिटवीन द टू, कंस्ट्रिक्शन है, सो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, रिजल्टिंग इन नेगेटिव प्रेशर्स, एंड नेगेटिव प्रेशर कॉजेज सक्शन इफेक्ट। So apart from this, apart from being drawn towards each other, the bow of each vessel turns towards the stern of the other vessel. So ऊपर वाली इमेज में भी आप देखिए कैसे भाव घूम रहा है towards the stern of the other ship. रेड का भाव गोल्डन के स्टर्न की तरफ घूम रहा है और गोल्डन का भाव रेड के स्टर्न की तरफ। So both the ships are being bodily drawn towards each other. Apart from that, the bow of each vessel moves towards the stern of the other. So ये आपका आंसर होगा for figure B. When both the vessels are abeam to each other, there is constriction between them. There is increase of velocity of backflow of water due to the constriction, resulting in negative pressures. Both the vessels will be bodily drawn towards each other. And apart from that, the bow of each vessel will move towards the stern of the other vessel. So this is figure B. Okay, अब थर्ड में आ रहे हैं फिगर सी में। फिगर सी में क्या हो रहा है? The two ships are now leaving each other. When the two ships are leaving each other, तो जब वो अबीम थे उनके बीच में नेगेटिव प्रेशर था ऑलरेडी, but now excessive negative pressures build up around the stern area, and negative pressures create suction. So you can see the golden का stern रेड के stern की तरफ जा रहा है और रेड का गोल्डन की तरफ आ रहा है। And if corrective action is not taken, then the sterns can collide. You can also see positive pressures on the starboard side of both the ships. Again, stern में positive pressure होता नहीं है, but in comparison to the negative pressure which has built up on the port quarter में बहुत negative pressure build up हो गया है. In comparison to that, यहाँ पे कम है. And negative pressures creates suction effect. So figure 3 का और C का क्या आंसर होगा? That in figure C, excessive negative pressures built up at the stern, right? And if corrective action is not taken, then the sterns may collide. And corrective action क्या होगा? You'll have to use bold helm and engine orders. Hard port, full ahead. दोनों शिप को हार्ड पोर्ट फुल हेड यूज करेंगे, तब जाके स्टर्न्स अलग होंगे। और जैसे स्टर्न अलग होने लगता है, यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल स्पीड एंड मिडशिप्स। क्लियर है? सो नाउ लेट्स लुक एट दिस अगेन। टू शिप्स अप्रोचिंग, मूव टुवर्ड्स द बैंक, बोथ कैन एक्सपीरियंस बैंक इफेक्ट। व्हेन द बाउस कम टुगेदर, bow repel होता है। When they come together, negative pressures build up, constriction है, bodily attraction, and the bow of each vessel will move towards the stern of the other vessel जब वो अबीम होते हैं। And when the vessels are leaving, excessive negative pressures build up at the stern, and if corrective action is not taken, then the sterns may collide. ओके, यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि आपने देखा होगा जब दो जहाज अबीम आ जाते हैं कनाल्स में, यू मस्ट हैव क्रॉस्ड so many ships during the canal transit,
तो you must have seen the pilot going out and waving to the other pilot. वो एक courtesy होती है एक दूसरे को विश करना. But before the pilot goes out, वो पहले पीछे मुड़ के देखता है to ensure that the sterns are passing clear. क्योंकि जो भी रिस्क होगा कोलिशन का स्टर्न में वो यहीं पे होगा when the two ships are beam. So whatever corrective action has to be taken will be taken when the two ships are abeam. So that is why he goes out, master भी जाता है, to make sure that the sterns are passing clear. Okay, so any question on this overtaking? So आपको explain करना है figure A, figure B, figure C, और ये आपके handouts पे already दिया हुआ है diagrams. Okay. और कुछ क्वेश्चन है इसमें? सर स्पीड जितना कम होगा उतना कम इंटरेक्शन होगा ना? यस, वो तो श्योर है. इंटरेक्शन उतना ही कम होगा जितना आपकी स्पीड कम होगी. जितना आप मैंने तो यहाँ पे लोडेड वेसल लिया है तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा. इफ लाइट तो इंटरेक्शन कम होगा. और कोई क्वेश्चन? नहीं. सर इट विल डिपेंड ऑन द ड्राफ्ट्स आल्सो. ड्राफ्ट नहीं बोलते हैं, अंडर कील क्लियरेंस बोलता है. राइट. यस. अंडर कील क्लियरेंस क्या है उस पर डिपेंड करता है. एनी अदर क्वेश्चन? इट विल ऑल्सो डिपेंड कि आप बैंक के कितने क्लोज हो. ठीक है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओवरटेकिंग. अब ओवरटेकिंग में देखिए क्या हो रहा है. फिर से देखिए. अब एक बार और देखना और आप ये नोट करो कि शुरू में क्या हो रहा है और एंड में क्या हो रहा है. दिस और एंड में क्या हो रहा है वो देखिए. बीच का जो मैं शुरू का और एंड का देखिए. Okay, so now green ship is overtaking the red.
रेड का stern is moving towards the bank initially. ठीक है. Now the two ships are gradually coming abeam, and when they are coming abeam तो क्या हो रहा है, बाव बाहर को जाने लग गए, स्टर्न्स नजदीक आ रहे हैं, तो स्टर्न्स में नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो रहा है. यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेना है, नहीं तो स्टर्न्स कैन कोलाइड. अब green ship is gradually overtaking, and green ship is now crossing the bow of the red ship. So the bow of the red ship is now moving towards the stern of the green ship. एकदम उल्टा हो रहा है. अभी green ship का bow is moving towards the stern. आगे the red ship का bow is moving towards the stern of the other ship. Okay, अब इसी को एक एक करके देखते हैं. So can anyone tell me what exactly is happening here? Why is it happening? ग्रीन शिप की स्पीड ज्यादा है, इसलिए उसका रेड वाले का स्टर्न दूर चला जा रहा है, ऐसा हो रहा है. ओके, ग्रीन की स्पीड ज़्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो ओवरटेक कर रहा है. लेकिन ग्रीन का जो बाव वेव है, जो वेव है उसकी ना आगे बाव वेव बन रही है, तो बाव वेव क्या कर रही है, उसके स्टर्न पे हिट करती है. स्टर्न पे मतलब जो रेड शिप का जो हल पानी के नीचे है उसको हिट करता है वो बाव वेव, and that bow wave is pushing the stern of the red ship towards the bank. Okay, because green. This is bank effect also. हाँ, बैंक इफेक्ट भी हो ये बैंक इफेक्ट नहीं होगा, बट बैंक इफेक्ट मैं आपके साथ सेपरेटली लूंगा टॉपिक, राइट, वो टॉपिक अलग होगा. बट यस, बैंक इफेक्ट यहाँ पे अभी नहीं है. यहाँ पे बिकॉज द ग्रीन शिप इज ओवरटेकिंग, तो उसकी जो बाव वेव है, आप जानते हो ना कि बाव वेव बनती जाती है. जैसे लेट्स से आप जेटी में अलोंग साइड हो, राइट, कोई शिप ओवरटेक कर रहा है, ओवरटेक कर रहा मतलब वो भी बर्दिंग के लिए जा रहा है, तो उसकी बाव वेव बनती है, और बाव वेव बन करके आपको हिट करती है, यू आर अलोंग साइड, तो आप वहाँ पर जेटी में आगे पीछे सर्च करने लगते हो. तो वैसे ही वो बाव वेव है रेड ग्रीन शिप की, विच इज स्ट्राइकिंग जो अंडर वाटर हल है उसमें स्ट्राइक करती है, तो पुश कर रही है वो. अब क्योंकि स्टर्न नजदीक आ रहा है रेड वाली का, बैंक इफेक्ट हो सकता है, बैंक इफेक्ट और भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है चीज़ों को, पर यहाँ पे हम बैंक इफेक्ट नहीं देख रहे हैं अभी. यहाँ पे अभी हम सिर्फ ये वाला देख रहे हैं, ओवरटेकिंग का. लेकिन अगर बैंक इफेक्ट भी हो रहा है तो मैटर्स कैन गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, सो इट इज स्ट्राइकिंग द पोर्ट क्वार्टर, और ऑल्सो ऑन द पोर्ट फेस, रडर का जो पोर्ट साइड का जो फेस है उस पर भी स्ट्राइक करता है. तो द स्टर्न ऑफ द रेड शिप इज मूविंग टुवर्ड्स द बैंक. मोमेंटली रेड शिप की स्पीड बढ़ जाएगी, मोमेंटली, क्योंकि पीछे से पुश मिल रहा है उसको. मोमेंटली ग्रीन शिप की स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि रेड शिप का प्रोपेलर वॉश इज एक्टिंग लाइक अ करंट, मोमेंटली. अब पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, अब दोनों जहाज अबीम आ गए. रेड शिप की स्पीड अभी भी बढ़ती रहेगी थोड़ा थोड़ा, ग्रीन शिप उसको खींचते हुए ले जा रहा है. ओके, नाउ व्हेन द टू शिप्स आर अबीम, तो अगेन पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप होता है बाउस में, और जो बाव वेव है हर एक दोनों जहाज की, वो डिफ्लेक्ट करती है. स्टर्न्स नजदीक आ रहे हैं, स्टर्न नजदीक आ रहा है तो मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी, जो पानी है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, कंस्ट्रिक्शन हो गया वहां पे. सो आपको एरो दिख रहा है,
ग्रीन का एरो रेड की तरफ है, रेड का एरो ग्रीन की तरफ है, तो वहां पे सक्शन इफेक्ट हो रहा है स्टर्न पे। अगेन अगर एक्शन नहीं लोगे तो स्टर्न्स कैन कोलाइड। सो बोथ द शिप्स हैव टू टेक बोल्ड हेल्म एंड इंजन ऑर्डर। ग्रीन वाला हार्ड स्टार्बोर्ड फुल हेड बोलेगा, रेड वाला हार्ड अपोर्ट फुल हेड बोलेगा। और जैसे ही बाउस क्लियर होने लगेंगे, स्टर्न क्लियर होने लगेगा, मिडशिप्स कर दिया, रडर स्पीड नॉर्मल कर दी। सो इन फिगर 1B ये 2 है जगह, तो 2B में क्या करेंगे? बोथ द शिप्स आर बीम, positive pressures build up at the bow, and the bow wave of each vessel will deflect it outwards. Sterns will be coming closer, negative pressures building up, and if corrective action is not taken, the sterns can collide. अब ओरल्स में पूछेंगे क्या करेक्टिव एक्शन लोगते हैं, तो हार्ड अपोर्ट, हार्ड स्टार्बोर्ड, फुल अहेड। अब हार्ड अपोर्ट डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम से जहाज टर्न कर जाएगा, या फुल हेड मारोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से 20 नॉट स्पीड मिल जाएगी। बट द थ्रस्ट ऑफ द प्रोपेलर on the rudder will increase. That means the effectiveness of the rudder will increase. और उसके बाद जैसी सिचुएशन बेटर होने लगती है, मिडशिप्स कर दो और नॉर्मल स्पीड आ जाओ। ना फिगर्स सी में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। पहले ग्रीन शिप का bow was moving towards the stern of the red ship. Now the bow of the red ship is moving towards the stern of the green ship. The bow wave of red ship is pushing on the starboard quarter of the green ship. So उसका stern बैंक की तरफ मूव कर रहा है। अगेन ग्रीन शिप अगर ध्यान नहीं देगा, एक्शन नहीं लेगा, तो she might come dangerously close to the bank. So green ship hard aport and red ship hard starboard, corrective action लेंगे। Collision नहीं होगा because green ship has already overtaken. And once the ships have overtaken, both will return to the center of the canal. Okay, now one thing I want to tell you here is that आप लोग एग्जाम्स में थोड़ा सा इसको गलत लिखते हैं। कल मैंने दूसरे वाले सेक्शन को बताया था, बी को, कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दिखा रहे हैं यहाँ पे, प्लस और माइनस, दीज आर प्रेशर सिस्टम्स। इट इज नॉट चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है ये जो माइनस माइनस दिखा रखा, या इट इज नॉट मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में भी हम रेड और ब्लू को हम लोग प्लस माइनस से करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी में भी हम लोग प्लस माइनस बोलते हैं, बैटरी में भी प्लस माइनस लिखा रहता है। So this is not positive charge or negative charge. These are pressure systems around the hull. मैं शुरू से प्रेशर प्रेशर ही बोलता हूँ। प्रेशर बदल जाएगा, इंटरैक्शन होगा। So now, and this is not magnetism कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल कर रहा है। स्टर्न में नेगेटिव भी तो आया था, दोनों के स्टर्न में नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव ने भी रिपेल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिज्म लॉ। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, सक्शन इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। ओके, सो प्लीज डू नॉट मेंशन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यू हैव टू से देयर इज पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर। Okay, so any question on this part? Overtaking में? हाँ जी, any questions?
ओके, नो क्वेश्चंस। सर जो लास्ट लास्ट अभी आपने जो इमेज दिखाई है जिसमें रेड वेसल का बाव उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, सर वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से अट्रैक्ट हुआ ना सर उधर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना आपसे, इट इज नॉट दैट ये मैग्नेटिज्म नहीं है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट कर रहा है। हमने एक पोजीशन पहले भी दिखाई थी आपको, ये वाली, ये नीचे वाली इमेज देखो, नीचे वाली इमेज में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे सक्शन इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव प्रेशर्स हो गए। हाँ सर, वो तो समझ में आ गया सर कि सक्शन क्रिएट हो रहा है सर। तो सर हम्म, जो जब ये ग्रीन ग्रीन वेसल उसको ओवरटेक कर लेगा, तब रेड वाले का जो बाव उसकी तरफ सक्शन इफेक्ट की वजह से अट्रैक्ट हुआ ना सर, क्योंकि नेगेटिव है उसके स्टर्न में, नेगेटिव ये प्रेशर बना हुआ। सक्शन की वजह से। अब सक्शन क्यों हुआ है वो अभी बताता हूँ आपको, पेंट में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? क्यों पहले पहले क्यों हो रहा था? पहले ग्रीन का रेड की तरफ आ रहा था, अब रेड का ग्रीन की तरफ जा रहा है, राइट? वो मैं आपको पेंट में समझाता हूँ। और कोई क्वेश्चन? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है भाई? सर हाँ जी। सर ये रेड वेसल के ऊपर ये जो पॉजिटिव प्रेशर्स हैं, हाँ, इन्हीं की वजह से जो ग्रीन वाला है वो उस तरफ जा रहा है ना, जेटी की तरफ। अच्छा, हाँ, क्योंकि इसकी जो उसकी जो बाव वेव है ना, जो रेड शिप की जो बाव वेव है, अब वो स्टारबोर्ड क्वार्टर में स्ट्राइक करती है। बाव वेव समझते हैं? चलो ये भी मैं आपको पेंट में समझा दूंगा। हर एक जहाज की बाव वेव होती है ना, सो वो बाव वेव जो है वो स्ट्राइक करती है स्टारबोर्ड क्वार्टर में। तो अब ग्रीन का जो स्टर्न है वो इधर को जा रहा है, टुवर्ड्स द बैंक। चलो अभी पेंट पे आके मैं समझाता हूँ आपको। ओके, और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। ओके, सो नाउ आपका जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, राइट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केचेस, और नीट स्केचेस आता है, ठीक है? स्केचेस के भी मार्क्स मिलते हैं एज यू नो। अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केचेस, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, और स्केच अगर नीट हो तो उसके को भी ध्यान में रखा जाता है। अगर प्रॉपरली मार्क्ड है, लेबल्ड है, एरोज, प्रेशर सिस्टम या जो भी वो आपने दिखा रखे हैं, तो ऑल दोस काउंट। स्केचेस का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने बना दिया और छोड़ दिया। ये जिस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दिखा रहे हैं, हाउ द बाव इज मूविंग, वो दिखा रहे हो, सो ऑल दिस यू आर एक्सपेक्टेड टू शो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केचेस। तो उसके मार्क्स अलग से होते हैं। एनीवे, सो नाउ क्वेश्चन आ रहा है आपका, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्केचेस the interactions between two ships approaching each other head on in a canal. ठीक है? Explain with the help of neat sketches the interactions between two ships approaching each other head on in a canal. So generally बच्चों ने ये देखा जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, होती हैं और आई हैं पहले। So what some students do, they do not read the question, और उन्होंने देखा कि ये है, तो हेड ऑन वाला पूछा गया है क्वेश्चन में, वो रिप्लाई कर देते हैं आंसर में ओवरटेकिंग वाला, ठीक है? या ओवरटेकिंग वाला पूछा गया तो हेड ऑन वाला कर दिया। जैसे ही पढ़ा अप्रोचिंग ईच अदर,
सो उनके दिमाग में आता है कि अप्रोचिंग का मतलब सिर्फ हेड ऑन ही है. इवन द शिप इन एन ओवरटेकिंग सिचुएशन, वन शिप जो ओवरटेकिंग शिप है वो भी तो अप्रोच कर रही है दूसरे जहाज को. हेड ऑन में तो कर ही रहे एक दूसरे को अप्रोच. बट इवन इन एन ओवरटेकिंग सिचुएशन, द वेसल विच इज ओवरटेकिंग is approaching the other vessel. So please read the question completely, fully. Approaching head on in a canal लिख पूछा है या approaching each other in an overtaking situation पूछा है. Approaching each other in an overtaking situation. So one very common mistakes, and obviously एक आध एक मार्क्स दे देते हैं आपको ग्रेस फॉर योर एफर्ट. आपने जो किया है उसके एफर्ट के लिए 1 मार्क 2 मार्क दे दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन. बट डेफिनेटली यू कैन नॉट एक्सेप्ट मार्क्स फ्रॉम द सर्वेयर in MMD. So reading the question fully, completely, understanding it, and then answering is part of your examination. Okay. Any question now before I go off screen and share this? And now I will share with you paint. एक मिनट होल्ड कीजिए. Okay, I've shared this screen with you now, paint. So we were talking about the ship in an overtaking situation. So we have ship number 1 and we have ship number 2. Ship number 1 is overtaking. अब हमने क्या देखा कि जो ये है इसका भाव इधर आ जाता है और समझो ये बैंक है आपका और ये ऐसे हो जाती है. राइट, समथिंग लाइक दिस. क्यों ये नंबर 1 शिप का भाव इधर को मूव कर रहा है? वाई? क्योंकि इसकी बाव वेव है. ये देखो बाव वेव आ रही है इसकी एंड बाव वेव इसकी यहाँ पे स्ट्राइक करती है. तो स्टर्न तो इधर को मूव करेगा, इसका स्टर्न इधर को मूव करेगा, बाव पोर्ट को जाएगा. फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है क्योंकि यहां पे बैंक इफेक्ट भी हो सकता है. तो आपका और भी ज्यादा बाव पोर्ट को जाने लगेगा. बट लाइक आई सेड, ये कंबाइंड इफेक्ट है दोनों का, बट बैंक इफेक्ट बाद में लेंगे. सो ये जो बाव वेव है इसकी, इट इज स्ट्राइकिंग ऑन दिस पोर्ट वाटर. But why is the bow of number 1 ship moving towards the stern of number 2 ship? Okay, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से दूसरी इमेज बना रहा हूं. ये आपका बैंक है और ये आपका जहाज है. ठीक है, ये ओवरटेक कर रहा है. नाउ ये जो शिप है, इट हैज मूव्ड फ्रॉम हियर to here. When numbering भी कर देता हूँ, this is number 1 ship, this is number 2 ship. So number 2 ship has moved ahead.
अब यहां पे नंबर 2 शिप, यहां पे जो पानी डिस्प्लेस कर रहा था वेसल, राइट, उसको जो डिस्प्लेस कर रहा था, तो सब जगह से पानी को खींचेगा ना, टू फिल दैट स्पेस है, वॉइड स्पेस, वहां पे पीछे गड्ढा तो नहीं रह जाएगा. व्हेन नंबर 2 शिप हैज मूव्ड अहेड, पीछे गड्ढा तो नहीं रह जाएगा, सब जगह से पानी आएगा टू फिल अप दैट वॉइड स्पेस. और यहां पे हमारे पास ये बाव वेव है शिप नंबर 1 की. So water is rushing from all the sides to fill up this void space. So बाव जो है, ये बाव वेव का पानी भी इधर आ रहा है, और जब बाव वेव इधर को आ रही है, तो वो क्या करती है, बाव को भी खींचते हुए ले आती है यहां पे. आपके समझ में आ रहा है सर? यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे सर आ रहा है सर. यहाँ पे कोई जहाज है, वो जहाज यहां से यहां मूव कर जाएगा, तो पीछे गड्ढा थोड़ी रह जाएगा. वाटर विल रश इन फ्रॉम ऑल द साइड्स. यहां पे समझो अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, वो लकड़ी का टुकड़ा विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स देयर. आपने सेफ्टी में पढ़ा होगा, राइट, LSA में या FFA में, जो भी आपको पढ़ा रहा है, कि व्हेन अ वेसल इज सिंकिंग, राइट, एंड यू आर इन अ लाइफ बोट, नेवर स्टे क्लोज टू द वेसल, सिंकिंग वेसल. बताया गया है? यस सर. क्यों? सर क्योंकि वो नीचे जाता है तो वहां पे पानी का गड्ढा बन जाता है और सब जगह से पानी आ जाता है. हाँ, तो तो वैक्यूम lifeboat क्रिएट शायद होगा, अंदर वैक्यूम चला क्रिएट जाए. होगा, Yes. वैक्यूम क्रिएट होगा, तो आपके बोट को भी खींच लेगा वहां पे. Isn't it? वैसा ही इसका भी है. When this vessel is moving from one position, कहाँ गया वो? When the vessel has, the number 2 vessel has moved ahead, तो यहाँ पे गड्ढा तो नहीं रह जाएगा. Water will move in from all the sides. तो ये जो बाव वेव है जहाज की, ये बाव वेव भी यहाँ पर मूव कर रही है, और बाव वेव मूव करेगी तो बाव को खींचते हुए ले जाएगी उधर. मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा, बट होगा. अगर वो शिप लाइट होगा, नंबर 1 शिप लाइट है, तो और भी ज्यादा इफेक्ट दिखेगा आपको. एंड सेम थिंग हैपेंस व्हेन द शिप हैज ओवरटेकन. अब ये ग्रीन शिप यहां आ गई है और आपका ये रेड शिप है. तो ये ग्रीन शिप जब यहां पे थी, यहां से यहां मूव कर गई, तो यहां पे वॉइड स्पेस तो नहीं रह जाएगा, सब जगह से पानी जाएगा. तो ये जो बाव वेव है, ये भी उधर जा रही है, और ये उधर जा रही है, तो बाव को खींचते हुए ले जा रही है. एट द सेम टाइम, बिकॉज द शिप इज देयर, तो उसकी जो बाव वेव है वो उसको भी स्ट्राइक करती है. क्लियर है? व्हेन द 2 शिप्स आर बीम, हमने वो वाली सिचुएशन की थी, व्हेन द 2 शिप्स आर बीम इन अ व्हाट यू कॉल हेड ऑन सिचुएशन में. यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भी वही हो रहा है. जब ये जहाज यहां पे था, यहां से यहां मूव कर गया, ये जहाज यहां पे था, यहां से यहां मूव कर गया, ये जहाज यहां से यहां मूव कर गया. सो अब पीछे यहां पे गड्ढा तो नहीं रह जाएगा ना? यार क्या हो गया कलर को? यहां पे गड्ढा तो नहीं रहेगा, सब जगह से पानी जाएगा भरने को. कलर को क्या हो गया भाई? एक मिनट. हाँ, सो यहाँ पे तो गड्ढा नहीं रहेगा, यहाँ पे गड्ढा नहीं रहेगा, void space. So water will rush in from all the sides. So now you have bow wave of the red ship
this one, ship number 1, ship number 2, and you have the bow wave of the ship number 1. So वो इधर को जा रहा है, इसका इधर को आ रहा है. इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब 2 ships जब अबीम आ जाते हैं, एक तो नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप हो गया यहाँ पे बहुत सारा बिटवीन द 2 ships. यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर आ गया, सो बॉडीली सक्शन होता है. They are drawn towards each other. Apart from that, the bow of each vessel will move towards the stern of the other. इसलिए घूमता है bow. Clear है? Yes, sir. Same thing in this situation. Yes, sir. Same thing here when the ship number 1 is overtaking, and same thing here जब ship number 1 has overtaken. Okay, any further questions? So Okay. you have said there's a corrective action, half hard port to hard starboard, then at a full head. It will be happening in the case of head-on situation when both the vessels are abeam. Both the vessels are abeam. यहाँ पे if there is a danger, but होगा नहीं क्योंकि bow is moving towards the other ship and यहाँ पे stern ऐसे move कर रहा है. So your sterns are passing clear in this abeam में. या bow is, आपने देखा ना bow port को जा रहा है दोनों जहाज का, तो ऑब्वियसली स्टर्न अलग जा रहे हैं. सो यहां पे अगर डेंजर होगा कोलिजन का, if the what you call safe passage is not maintained between the 2 ships. So safe passage आपका अबीम में जो पैरेलल बॉडी है उसमें आप टच कर सकते हो. So you need to maintain a safe passage distance. जब आपने देखा दोनों जहाज हेड ऑन आ गया, timely each vessel will go to the starboard side of the canal or channel and maintain a safe passage distance. If necessary, reduce the speed. Reduce the speed का मतलब ये नहीं है कि आपने हाफ हेड जा रहे हो, हाफ हेड से इंजन स्टॉप कर दिया. स्पीड तो अभी भी 7, 8, 9, 10 नॉट्स चल रही है ना. Your speed should be less. इंजन मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं. सो स्पीड आपको पहले से ही रिड्यूस करके रखनी पड़ेगी. नो पॉइंट आप 12 नॉट से जा रहे हो, नो पॉइंट गिविंग स्टॉप इंजन व्हेन द शिप इज अबीम और व्हेन द बाउस आर कमिंग. स्पीड तो आपकी वही है. सो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड इंजन मूवमेंट आर दिस थिंग. सो स्पीड कम करनी है हमको, एंड स्पीड क्या होती है? ओवर द ग्राउंड होती है, थ्रू द वाटर होती है. इंजन मूवमेंट नहीं किया आपने, डेड स्लो हेड मार दिया तो स्पीड कम हो गई. ओके, और कुछ? Sir, what I have seen in this during arrival and departure in Houston, the pirates used to put hard starboard and hard port when an approaching vessel used to come. At the same movement of like telegraph was always used to be on half a head or full head. फुल हेड में तो नहीं रखना चाहिए. पहले फुल हेड तो थोड़ी सी रिजर्व पावर हाथ में होनी चाहिए. वैसे भी जब आपकी अंडरकील क्लियरेंस कम है तो फुल हेड में जाओगे तो आपको स्पीड में तो कुछ खास फायदा होगा नहीं, खाली फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ेगा. सो हाफ हेड से फुल हेड में जा रहे हो, हाफ हेड में अगर आप 10 नॉट्स कर रहे हो तो फुल हेड में आप 10.5 हो जाएगी आपकी. कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा स्पीड में. फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वैसे ही आप शैलो वाटर्स में हो, अंडरकील क्लियरेंस कम है. इनफैक्ट यू विल बी बेटर ऑफ बाय कीपिंग हाफ अहेड. एंड द रीजन भी कि अगर आप फुल हेड में जा रहे हैं और कोई इमरजेंसी है और इमरजेंसी में आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो आपके पास है ही नहीं एक्स्ट्रा पावर, देन यू विल हैव टू रिंग डाउन इंजन रूम कि भाई थोड़ा सा इमरजेंसी आरपीएम बढ़ा दो, तो वो भी रो करके 1 या 2 आरपीएम बढ़ा देंगे.
But if you are going in half speed, should an emergency arise, you still have some power in hand, reserve power. Okay, now the situation that you are mentioning. So two ships जब आते हैं तो ऑफ कोर्स हेड ऑन आ रहे हैं तो पहले तो स्टारबोर्ड में जाओगे, तो उसके लिए आपको दोनों को स्टारबोर्ड करना पड़ेगा। इनिशियली तो हेड ऑन हो, उसके बाद जब बाव क्रॉस कर जाता है, जब बाव क्रॉस कर गया दोनों जहाजों का, उसके बाद वो पोर्ट देते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक जहाज है और ये एक जहाज है। सो नाउ द बाउस हैव ऑलरेडी कम टू दिस थिंग। अब उसने पहले से ही पोर्ट देना शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों, और पोर्ट देने से इफेक्ट क्या आ रहा है? यही तो इफेक्ट आ रहा है। यस, वो दोनों के दोनों पोर्ट देते हैं, और पोर्ट देना भी चाहिए, बिकॉज देन यू हैव टू कम बैक टू द सेंटर ऑफ द कैनाल। अभी तो आप स्टार्बोर्ड साइड में हो ना, बोथ द शिप्स आर ऑन द स्टार्बोर्ड साइड। उसके बाद आपको फिर ये देना है, पोर्ट देना है, एंड पोर्ट देने से आपका स्टर्न भी क्लियर हो रहा है, एंड देन you have to come back to the center of the channel. So that's correct what you are seeing. पहले वो स्टारबोर्ड देते हैं, और जब इस सिचुएशन में आ जाते हैं, so by the time they give port helm, both the ships are being, क्योंकि पोर्ट हेल्म देने में भी तो टाइम लगता है शिप को रिस्पॉन्ड करने में। तो आपने पोर्ट हेल्म तो दे दिया, बट बाय द टाइम द रिस्पॉन्स कम्स, बोथ द शिप्स आर अबीम, और वैसे भी बाव इधर को मूव करना है दोनों जहाजों का, एंड देन यू हैव टू कम, बोथ द शिप्स विल कम बैक टू द सेंटर। ओके, हाँ जी, क्लियर है सर? यस सर। ओके, सो और कुछ क्वेश्चन? Sir, once we were in an STS operation near Dubai, and so one vessel was a tanker, and after the operation, the mother vessel picked up anchor. We started moving, but it was very difficult for our vessel to part. Why was that, sir? The sterns were continuously coming close to each other, so Okay, sir, ये also due to interaction. अब ये जो है STS ऑपरेशन आपके सिलेबस में नहीं है सर, ये फेस टू मार्क कराते हैं, बट ये भी इंटरेक्शन, नॉट ओनली फॉर यू टू कास्ट ऑफ। कभी कभी अगर आप स्पीड में हो, पायलट को ड्रॉप कर रहे हो, पायलट बोट छोटी सी होती है, डिस्प्लेसमेंट कम, स्पीड उसके पास होती है बट डिस्प्लेसमेंट बहुत कम। सो अगर आप लेट्स से आपने क्या कहते हैं, पायलट लैंडर स्टारबोर्ड साइड में है, पायलट बोथ स्टारबोर्ड साइड में है, और आपकी स्पीड ज़्यादा है, तो पायलट उधर जाएगा, फाइन, और बोट को कास्ट ऑफ करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो पायलट विल आइदर टेल यू टू प्लीज स्लो डाउन, और ही विल से प्लीज टर्न टू स्टारबोर्ड, सो दैट आप दोनों के बीच में गैप आ जाए। जितना आप चिपक के रहोगे उतना डिस्टेंस कम है आपके और शिप के बीच में, या पायलट बोट हो या आपकी जो लाइटनिंग वेसल है या मदर वेसल, जितना कम डिस्टेंस होगा उनके बीच में उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा। सो पायलट विल आइदर टेल यू टू रिड्यूस द स्पीड, तो इंटरेक्शन कम हो जाएगा, and he will be able to cast off, or he will tell you to turn to starboard. And remember, गलती से भी अगर पायलट बोट स्टारबोर्ड साइड में है या पोर्ट साइड में है, किसी भी साइड में, वैसे स्टारबोर्ड साइड में है, और आपने स्टारबोर्ड को पोर्ट को हेल्म मार दिया, तो याद रखिए वो जो आपका जो हल है
वो पूरी बोट पे पुश करते हुए जा रहा है. The pilot boat might capsize. The pilot will never be able to get off. Yeah, pilot boat will never be able to cast off. So if a pilot boat is alongside, never alter course away from it. नहीं तो आप समझ रहे हैं ना, पायलट लैडर पीछे होती है और आप बोट को टर्न कर रहे हो स्टार्बोर्ड साइड में, तो स्टर्न क्या कर रहा है, वो पुश कर रहा है बोट को. डेंजरस सिचुएशन, पायलट बोट कैन कैप्साइज. और नहीं भी करेगा कैप्साइज तो ही विल नेवर बी एबल टू कास्ट ऑफ. ओके, सो वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं STS ऑपरेशन, अनफॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, वो आपको मैं फेज 2 में कराऊंगा. ओके सर. चलो, ओके, no more questions, then let's call it off. And okay guys, chalo, bye.